slate is clear. My past is clear if I have repented from Jesus. You might be a murderer, you might be a rapist, you can be anything. If you repent, God will forgive you. What does the thief come to steal? He comes to steal your soul. Does he come to kill? He comes to kill your dreams. Last is destroy. What does he destroy? He destroys your destiny by taking your soul to hell. There is no one who can take it to heaven but only the blood of Jesus. Please be attentive to the word. तो अपना ध्यान जो है जब वचन यहाँ पे बांटा जाता है या सिखाया जाता है तो पूरा ध्यान अपना वचन पे लगाएं। When I was starting my career, one of my bosses told me one thing which is always there with me. और जब पास्टर अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे तो उनके एक बॉस ने जो है उनसे एक बात कही थी और जो वो आज तक वो लेके चलते हैं। If you learn, you will earn. और अगर तुम सीखोगे तब तुम कमाओगे। Bas, that's it. Don't talk too much. Listen. Some people but they do of their life. Nothing there. Just listen sometimes. It's important. तो कई बार बहुत जरूरी होता है कि कुछ लोग सिर्फ कहते हैं और सुनते नहीं है, तो हर बार सुनना जो है वो बहुत जरूरी होता है। So I shared 4 sheddings of blood last Sunday. और गए रविवार हमने जो है 4 लहू बहने का जो जगह था या 4 बार जो यीशु मसीह ने लहू बहाया वो सीखा हमने। Let's pray. Father, we thank you for this time. पिता इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, that the entrance of your word brings light. धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन का आना हमारे जीवन में रोशनी लाता I है। pray that, Lord, your word should bear fruit in our lives 100-fold. और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपका वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते Amen. हैं। So last time I shared the 4 sheddings of blood. I want you, any one person, to tell me one shedding of blood. सुरेश एक shedding of blood बोल और वो हमारे लाइफ में कैसा रिलेट होता है वो बता दे। 4 बताया मैंने, एक बोल उसमें से। वो फायदा क्या हुआ उससे? उससे खून है बराबर, बट उससे हमारा फायदा क्या? Okay, anybody wants to try this? Jesus' beard was plucked for what reason? For the respect. Yeah, for our image. Very good. For our image to be restored. Very good. That's why listen to the word. Don't be sleepy. I'll put coffee machines very soon. तो बहुत जरूरी है कि हम वचन जैसे है जो उसे सुने, क्योंकि जब यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई थी और वो लहू बहाया गया था ताकि हमारा जो चरित्र है, हमारी जो आदर है वो बना रहे। Anybody else? Second shedding of blood. Anyone? We are not going step by step. Anyone? अभिजीत एक shedding बता। मेरे को मालूम था तो यही बोलेगा। सबसे इजी। क्यों? Good. और यीशु मसीह को जो है वो पीठ पे कोड़े पड़े थे जब उनका लहू बहाया था ताकि हम जो है वो चंगाई पा Okay. सकें। Anybody else? Yeah. For what? Yeah, that I know. But what for what? What is the purpose? Not healing. For our souls. Yes. और वो गार्डन ऑफ गेथसेमनी में वहाँ पे जब यीशु मसीह का लहू जब पसीना जब लहू में बदल गया तो वो बहाया गया था ताकि हमें हमारे प्राण में चंगाई मिले। Okay, the last one. Anyone wants to take up this 4th one? No, but Vijay Gadgadi. Who wants to go for the 4th shedding of blood? You're not there only. I know your answer on this. Okay, anyone? Wait, let Dimple answer. Yeah, for what? Amen. और चौथा जो लहू बहाया गया था जब उन्हें कांटों का मुकुट पहनाया गया था तब उनका लहू बहाया था ताकि हमारे पास यीशु का मन आ सके। Okay, now we go to the 5th shedding of blood. और हम पांचवा लहू बहना सीखेंगे। Matthew chapter 27 verse 35. मत्ती का 27 अध्याय और 35 वचन। Matthew chapter 27 verse 35. Yeah. मत्ती का 27वां अध्याय और 35 वचन कहता है। We'll see it on the screens. Yeah. और जैसे वचन कहता है तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। That's it. They crucified Jesus. और उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। Now, when they crucify you, they hit nails on your palms and they hit nails on the legs, so that you're stuck to the cross. और जब आपको क्रूसित किया जाता है तो आपके हाथों पे जो है वो खिल्ले ठोके जाते हैं और आपके पैर में भी खिल्ले ठोके जाते हैं ताकि आप उस क्रूस पर चिपके रहो। Think about it. You getting slightly hurt and you putting nails inside. What a difference! What a pain! Through and through the bones, the nails are being pierced. और अगर हम सोचेंगे कि हमें थोड़ी सी भी चोट लगती है तो हमें कितना दर्द होता है, और यीशु के हाथ में जो है वो आर पार जो है वो खिल्ले ठोके गए। Plus his legs were crucified. The nails went through the legs. और उनके पैरों में भी वो खिल्ले जो है वो ठोके गए थे। Now, why the nails were put on the hands? और हाथों में वो खिल्ले क्यों ठोके गए? Blood came. लहू बहा So that our works are accepted by God.
और वो इसलिए ताकि जो हमारे काम है वो परमेश्वर के आगे स्वीकारे जा That's why सके। when people do good works in the world, it is useless. You're doing it without Christ. That's why zero results. और इसलिए जब संसार में कोई लोग अच्छा काम करते हैं और उसके पास यीशु नहीं है उनके पास, तो उनके वो काम जो है वो शून्य दर्शाते Why? हैं। Because the Bible says your good works are like filthy rags before the Lord. But when through Jesus, because of His blood, when I do good works in the name of Jesus, it is accepted by God. क्योंकि ऐसा लिखा गया वचन में कि तुम्हारे अच्छे काम परमेश्वर के आगे जो है वो कचरे के समान है, कूड़े के समान है। और जब मैं कोई अच्छा काम करती हूँ और यीशु अगर मेरे पास है, मैं यीशु के नाम में कोई अच्छा भला काम करती हूँ, तो वो परमेश्वर के आगे स्वीकारा जाता है। Only by the blood of Jesus our good works are accepted in the sight of God. You giving money to the poor, you don't know Jesus useless. You will not get rewards for that. But you giving money in the name of Jesus and you have accepted it, that will bring rewards to your life. और जैसे पास्टर ने कहा कि अगर हमारे पास यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा जो है हमारे अच्छे काम जो है वो परमेश्वर के आगे जो है वो स्वीकारे जाते हैं। अगर जैसे मैं विश्वासी नहीं हूँ, मैं यीशु को नहीं जानती हूँ, मैं किसी गरीब को पैसे दूं तो मुझे उसका कोई भी इनाम नहीं मिलेगा। पर अगर मैंने यीशु को स्वीकारा है और मैं किसी की मदद करती हूँ तब मुझे उसका इनाम मिलेगा। Whatever, every action creates equal and opposite reaction. There's a science, right? और विज्ञान ऐसे कहता है कि हर एक कार्य के पीछे जो है उसका उल्टा जो है वो तुमको उसका रिएक्शन मिलता है। So don't do things just vain. People sometimes they just give, मैं तो ऐसा ही दिया. That's why your life is ऐसा ही only. Nothing is happening in your life because there is no purpose. और सिर्फ करने के लिए जो है वो चीजें मत करो। कुछ लोग जो है सिर्फ करने के लिए चीजें करते हैं, उनके पीछे ना तो कोई उनका मकसद होता है ना कुछ होता है। So that's why I'm teaching, when you're doing something in the name of Jesus, that will be accepted because Christ died, His hands were crucified, so our works will be accepted. तो जब हम कोई भला काम करते हैं यीशु मसीह के नाम में, तो वो काम जो है वो परमेश्वर के आगे स्वीकारे जाएंगे, क्योंकि उसके हाथों पे खिल्ले ठोके गए थे, उसका लहू बहाया था ताकि हमारे अच्छे काम स्वीकारे जा Now सके। the legs were crucified, the legs were pierced. उनके पैरों पे भी जो है वो खिल्ले ठोके गए थे। Why? क्यों? Because to restore our walk with God. ताकि हमारी जो चाल है वो फिर से परमेश्वर के आगे स्थापित हो सके। Many people want to go to heaven because they want to escape hell. और बहुत से लोग जो है वो स्वर्ग से इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो नर्क नहीं जाना Let me tell you चाहते। something. You don't go to heaven to escape hell. You go to heaven because you love God. और आप स्वर्ग इसलिए नहीं जाते हो ताकि आप नर्क से जो है वो बच सको, पर आप स्वर्ग इसलिए जाते हो क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। Don't think that just because of escaping hell I will accept Jesus. Don't do that. You will end up in hell only. और सिर्फ ऐसे मत सोचो कि मैं जो है वो नर्क से अपने आप को बचाने के लिए जो है मैं सिर्फ यीशु को स्वीकार लूंगा और तुम सोचोगे कि तुम स्वर्ग जाओगे। नहीं, तुम नर्क ही जाओगे। Some people theory is that hell and heaven is here only. और कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि स्वर्ग और नर्क यही है। अक्षय कुमार का एक पॉडकास्ट देख लिया, he said he is अंतर्यामी, he knows everything after death, that hell and heaven is here, so we'll do everything here. जैसे अक्षय कुमार का एक पॉडकास्ट था जिसने कहा कि स्वर्ग और नर्क जो है वो यही है, तो हमें जो करना है वो यही करना है। If hell and heaven would be here, Jesus would not come. He would not waste his time shedding his blood. और अगर स्वर्ग और नर्क हकीकत यही होता तो यीशु मसीह जो है वो नहीं आते थे, वो अपना लहू नहीं So again I'm बहाते। saying, if you want to accept Jesus because you want to miss hell, don't be under the impression you will be in hell. You accept Jesus and you want to be in heaven, so that because you love God. और हम फिर एक बार कह रहे हैं कि अगर आप यीशु को सिर्फ इसलिए स्वीकारते हो ताकि आप नर्क से जो है उसकी आग से बच सको, तो आप नहीं बचोगे, आप नर्क ही जाओगे। पर अगर आप यीशु को स्वीकारते हो, उसे मानते हो इस और आप स्वर्ग जाना चाहते हो इसलिए क्योंकि आप उसे प्रेम करते हो। Now the last part, 7th one, where Jesus shed his blood. और हम 7वां देखेंगे जहाँ पे यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। John chapter 19 verse 32 to 34. John chapter 19 verse 32 to 34. और हम यूहन्ना का 19वां अध्याय 30 से 34 वचन देखेंगे और जैसे 32 से 34 देखेंगे। जैसे वचन कहता है, सो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगे न तोड़ी। परंतु सिपाहियों में से एक ने बड़छके से उसका पंजा भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। Now I want to go this a bit deeper here. और हम इस वचन को थोड़ी गहराई से When देखेंगे। they put people into the cross, और जब लोगों को क्रूसित किया जाता है they used to put the nails on the leg and the nails on the hands. तो उनके हाथों में और उनके पैरों में खिले ठोके जाते After हैं। some hours they come and they remove the nails from the legs so that the man cannot breathe and he dies. और कुछ समय के बाद जो है, कुछ घंटों के बाद जो है वो लोग आते हैं और जो पैरों में जो खिले ठोके जाते हैं उसे उन लोग निकालते हैं ताकि जो क्रूस पे चढ़ाया गया है वो सांस ना ले सके और वो मर जाए। Because how you take breath? You have to
put weight, right? To take. So when they remove the nails from down, you can't take breath. You are hanging. You died. और हम सांस कैसे लेते हैं? हमें पूरा अपने शरीर पे जोर डालना पड़ता है। तो जब तुम्हारे पैरों से खीले निकाले जाते हैं तो तुम जो है वो अपने आप को खाली लटका के सांस नहीं ले सकते। Verse 33. Then the soldiers came and broke the legs of the first. Remember, Jesus died between two robbers. और अगर हमें याद होगा तो यीशु मसीह को जो है वो दो चोरों के बीच में जो है क्रूसित किया गया था। He is the King of Kings. He died between two robbers. और अगर हम सोचें कि वो दो राजाओं का राजा था और वो दो चोरों के बीच में उन्हें जो है क्रूसित किया गया। Out of that one robber accepted Jesus. और उसमें से एक जो चोर था उसने यीशु मसीह को स्वीकारा। Verse 33. 33 वचन कहता है, When they came to Jesus, they saw already he was dead, so they did not break his legs. What is the verse? They did not break his legs. और यहाँ पे लिखा है कि जब वो यीशु के पास आए तो उन्होंने देखा कि वो पहले से ही मर चुका था, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी। Let's go to Psalms 22 verse 16. और हम भजन संहिता का 22वां अध्याय 16 वचन देखेंगे। Psalms 22 verse 16. भजन संहिता का 22वां अध्याय 16 वचन कहता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। It's talking about the piercing of Jesus. Now go to Psalms 34:20. और हम भजन संहिता का 34वां अध्याय 20 वचन देखेंगे। Psalms 34 verse 20. और जैसे वचन कहता है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। David is prophesying that not even one bone will be broken of Christ. It is years, 1,000 years before Jesus would come and die, and he's saying not one bone will be broken on the cross. और यहाँ पे हम देखें तो दाऊद जो है वो हजारों साल पहले, यीशु के आने के हजारों साल पहले यहाँ पे भविष्यवाणी कह रहा है कि उसकी यीशु मसीह की एक भी हड्डी ना तोड़ी जाएगी। So they did not break his bones. तो उन्होंने उनकी हड्डियां नहीं तोड़ी। But they pierced his side and blood and water came out. पर उन्होंने उनके जो बाजू में था, हाथ के बाजू में जो था, वहाँ पे उन्होंने जो है वो भाले से जो है वो छेदा और उसमें से लहू और पानी निकला। Why? 7 shedding of blood. और ये था 7वां लहू बहना। पर ऐसा क्यों हुआ? So that the church will be born. तो वो इसलिए ताकि कलीसिया जो है वो जन्म लेगी। What came out? Blood and water. You come to church through salvation, then you receive water baptism. That is significance of the blood and water. और जब उन्हें भाले से छेदा गया तो क्या आया? लहू और पानी जो है वो बाहर निकला। तो जब हम कलीसिया का हिस्सा बनते हैं, हम कलीसिया में आते हैं, तो हम लहू के द्वारा जो है वो उद्धार पाते हैं और उसके बाद हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। So I shed 7 sheddings of blood. और हमने ऐसे 7 लहू बहना And सीखा। how this is applicable to you, I shared that. और हमने ये भी सीखा कि ये कैसे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। Now I'm going to share of how to apply the blood of Jesus. और अब हम सीखेंगे कि यीशु मसीह के लहू को हमारे जीवन में कैसे लगाना है। Very important. बहुत जरूरी I है। want you to listen to it because this will help you in your day-to-day activities. और आप इस वचन को जो है बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपकी रोजमर्रा के काम में आपकी मदद करेगा। Now before I go there was a person. There was a big pastor in Nigeria. His name was Reinhard Bonnke. He's dead now. और रेनाल्ड बॉन्की नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध पासवान था जो नाइजीरिया में था। He was an American, but he caused a lot of revival in Nigeria. He was a German actually. और वो एक जर्मन पासवान थे, पर उन्होंने बहुत सी बेदारी लेकर आए थे वो नाइजीरिया So में। somebody told him that why do you speak so much about the blood of Jesus? There are so many sinners. Because you say that the blood of Jesus saves you from sin. Then why there are so many sinners? और किसी ने उनसे पूछा कि तुम इतना परमेश्वर के लहू के बारे में जो है वो क्यों प्रचार करते हो? तुम कहते हो कि यीशु का लहू जो है वो पापियों को बचाता है, तो इतने पापी क्यों है? He said, everybody knows there is soap. और उसने कहा कि हर किसी को पता है कि साबुन होता है, Then why people are dirty? तो लोग मेले क्यों है? Because you're not using the blood. वो इसलिए क्योंकि वो लहू का इस्तेमाल That's नहीं why I करते। want to teach you how to use the blood of Jesus. Some people only keep on applying the blood. It's not only for that. Just cover my family, cover my property. It's not only for that. That is there, but it's not only for that. और कुछ लोग जो है वो यीशु के लहू के बारे में जानते हैं, ये जानते हैं कि हमें अपने आप को, अपने परिवार को यीशु के लहू से ढांपना है, पर उसे अपने जीवन में इस्तेमाल कैसे करना है वो लोग नहीं जानते। Now let's see how to apply. This is the topic, okay? How to apply the blood of Jesus. और हम अब देखेंगे कि यीशु मसीह के लहू को हमारे जीवन में जो है वो कैसे Oh, लगाना है। 7 benefits of the application of blood. या हम देखेंगे कि 7 लाभ क्या है जब हम यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में लागू करते हैं। Revelation chapter 12 verse 11. Revelation chapter 12 verse 11. हम प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय 11 वचन देखेंगे। Abhijit, who has written the book of Revelation? Okay, good. Deepika? Where? No, I know you're giving me answers. Where? You don't know where? Where he wrote this book? Okay?
Sean? He wrote this book on the island of Patmos. और यूहन्ना ने जो है वो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी है और उसने जो है वो पैटमोस नाम का एक द्वीप था वहां पे लिखी है. What is the difference between John and the other disciples? There's one major difference. Out of John, Neeru, don't raise your hand. I know everything. I know it. You're my Sunday school teacher. You know me. John. So, what is the main difference between this guy and 11 others? Vijay, क्या difference था? Yes, John died naturally. Others all were crucified or shot or hanged over the wall. और यूहन्ना और बाकी 11 चेलों में सिर्फ ये फर्क था कि यूहन्ना जो है वो एक नैसर्गिक मौत मरा था. बाकी जो भी चेले थे उनको क्रूसित किया गया था या उनके ऊपर जो है सताव आया तो उन्हें मार दिया गया था. So Revelation chapter 12 verse 11. तो प्रकाशित वाक्य का 12 अध्याय 11 वचन कहता है, और वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली. When we read this verse, you know what we feel? We feel two things. We will defeat devil by testimony. What testimony? When we come here and give testimony, is that the verse? We think that, right? It's not that. Yeah. और हम जब ये वचन पढ़ते हैं तो हम दो चीज सोचते हैं. एक तो हम ये सोचते हैं कि हम शैतान को जो है वो हरा देंगे कैसे, हमारी गवाही के द्वारा, जो हम यहाँ पे खड़े रह के गवाही देते हैं उसके द्वारा. First thing, they. The word they is believers. और सबसे पहले यहाँ पे जो शब्द है और वे जो है वो विश्वासी की बात हो रही है. All who have accepted Jesus are believers. तो हम सब ने जिसने यीशु को स्वीकारा है हम सब विश्वासी हैं. All who come to church are not believers. हर कोई जो कलीसिया आता है वो विश्वासी नहीं है. All who accepted Jesus as your Lord and Savior, not these people, as your Lord and Savior. और जितनों ने भी यीशु मसीह को स्वीकारा है अपना प्रभु और अपने उद्धारकर्ता के रूप में, वो विश्वासी है. Not by doing any actions, just by accepting. Say, Lord, sorry, I accept you as my Lord and Savior. I'm talking about them. और कोई भी एक्शन करके जो लोग मानते हैं फादर सन होली स्पिरिट में, वैसे लोग नहीं, पर जो मानते स्वीकारते हैं कि मैं पापी था, मैं क्षमा मांगता हूँ और मैं तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ. So they is the believer. तो वे जो है विश्वासी है. Overcame him. Him is who? Satan. और उस पर जयवंत जो हुए और उस पर वो कौन है? शैतान. Now there are three things given to you in this verse. How we can defeat the devil. और यहाँ पे 3 बातें जो है हमें इस वचन में लिखी दी गई है कि हम शैतान को कैसे हरा सकते हैं. By giving bad words. No, I'm reading. No, okay. By hitting people. It's first by the blood of the lamb. और सबसे पहली बात जो लिखी गई है कि हम शैतान को कैसे हरा सकते हैं वो है मेमने के लहू के Who's the द्वारा. lamb? Jesus. और मेमना कौन है? यीशु मसीह. Now, and then by the word of their testimony. और फिर लिखा है अपनी गवाही के वचन के कारण. What word of their testimony? और गवाही का वचन क्या होता है? Means a believer has to confess what the blood did for him in the Bible. Then he will defeat Satan. It's not normal testimony. Again, I'll repeat. A believer has to confess what the blood has done for him through the Bible. That is the word of testimony. और गवाही का वचन क्या होता है? यहाँ पे हम आमतौर पे यहाँ पे आके गवाही देते हैं, वो गवाही की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, पर गवाही का वचन ये है कि जो विश्वासी ये अंगीकार करे कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो पवित्र शास्त्र के अनुसार है, उसे बचाया गया है या उसके जीवन में कोई कार्य हुआ है, वो गवाही का वचन कहलाता है. If you give your word, Satan will not get scared. और अगर आप तुम्हारा वचन दोगे तो शैतान नहीं डरेगा. He will not scared of you. वो आपसे But नहीं when you डरेगा. say what Jesus did on the cross of Calvary, that Jesus did this for me at the cross of Calvary and I know it, Satan gets scared. पर जब आप ऐसा कहोगे कि मैं जानता हूँ कि उस कलवरी के क्रूस पर यीशु ने मेरे लिए क्या किया, या मेरे लिए यीशु ने कलवरी क्रूस पर ये किया है, तब शैतान आपसे डरेगा. So you overcome the devil by the blood of Jesus. तो हम शैतान पे जयवंत पाते हैं मेमने के लहू के द्वारा. And the word of testimony is not the testimonies what you give Sunday. That is not the overcoming. That is your encouraging people. That's a different thing. You overcome what Jesus did on the cross when you confess that through the Bible. और दूसरा है गवाही का वचन. तो गवाही का वचन गवाही वो नहीं होती है जो हम यहाँ पे आके हर रविवार देते हैं, वो हम दूसरों को उत्साहित करते हैं. पर गवाही का वचन वो है कि जब हम ये अंगीकार करते हैं कि उस क्रूस पर यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, उसे कहते हैं गवाही का वचन. Now, in the last portion of the verse, it's giving the qualification. Who can claim this? Who can defeat the devil? और अंतिम वचन अगर हम देखेंगे, अंतिम लाइनें देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया है कि कौन लोग जो है वो शैतान को हरा सकते हैं. Not people who can just say by the blood, by the blood. No, Satan is not afraid of uncommitted believers. Just coming one Sunday, 2 Sundays, 3 Sundays, on Easter, Good Friday they show up, 25th December they show up, 31st December they show up. Full year they are absent. But these days they get activated.
और वो लोग नहीं जो सिर्फ कहते हैं कि यीशु का लहू है मेरे पास, यीशु का लहू है मेरे पास, या जो विश्वासी ऐसे विश्वासी है जो सिर्फ क्रिसमस सभा पे आते हैं, गुड फ्राइडे की सभा पे आते हैं, ईस्टर पे आते हैं, बाकी पूरा साल जो है वो गायब रहते हैं, ऐसे विश्वासियों की वजह से He नहीं। doesn't get scared of uncommitted believers. और जो विश्वासी लोग परमेश्वर से नहीं जुड़े हुए हैं उनसे वो नहीं You know who डरता he है। gets scared of? They did not love their lives to death. Those who die to that fleshly desires, he gets scared to them. और वो किन से डरता है? वो उन लोगों से डरता है जो अपने प्राणों को ज्यादा प्यार नहीं करते हैं, मतलब अपनी जो शारीरिक इच्छा है उसे, शरीर की जो इच्छा है उसे मारते हैं, वो वैसे लोगों से प्रेम I'll करते give you an हैं। example. और उदाहरण के लिए, Suppose I am a foodie. और उदाहरण के लिए जैसे पासन को खाना बहुत पसंद है It is a fact. I am a foodie. और उन्हें खाना बहुत पसंद है And I have to fast. और इन्हें उपवास करना पड़े, What is that? तो वो क्या Spiritually, है? for my spiritual life. Whatever. XYZ. तो अगर उन्हें उपवास करना पड़े तो वो उनके आत्मिक जीवन के And लिए, I am not doing it. और अगर ये वैसा नहीं करते Means I am not dying to myself. तो इसका मतलब ये कि ये अपने प्राणों में नहीं मर रहे। So some people like to tell lies. और जैसे कुछ लोगों को झूठ बोलना बहुत अच्छा लगता है Master of lies there. और पल पल में वो झूठ बोलते हैं। Pal. That lies only the keyword. So I know all the songs by A to Z. It's there in my mind. Son asked me how many songs. I said more than 1,000 songs I know with the lyrics. और पासवान को हर एक गाने जो है वो भी पता है। Now this, some people say so much lies. They're not ashamed of themselves. और कुछ लोग जो है वो इतना झूठ बोलते हैं कि उन्हें खुद पे शर्म नहीं I tell you आती। what is the worst part of lie. और सबसे खराब बात क्या होती है झूठ बोलने If you की? tell one lie, अगर आप एक झूठ you बोलते have to हो tell 9 supporting lies to support that lie. That's why tell the truth and get pasting first only. तो अगर आप एक झूठ बोलते हो तो उस एक झूठ को बचाने के लिए उसके पीछे आपको 9 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो इससे अच्छा आप सच्चाई बोलो और एक बार मार खा के बैठ So जाओ। if I'm keeping on telling lies, और अगर मैं लगातार झूठ I'm बोलती not changing. मैं अपने आप को नहीं I have बदलती, not died to myself. तो मैंने अपने आप में अपने जीवन में मैं नहीं मरी। If every time I get angry and beautiful F word comes from my mouth, I have not died to myself. और अगर हर बार मुझे गुस्सा आता है और मेरे मुंह से जो है वो गलत शब्द आते हैं तो मैं अपने प्राणों में नहीं मरी। Same mouth you're worshipping Jesus, same mouth you're abusing. Does और- it make sense? इसी मुख से हम यीशु की स्तुति करते हैं और इसी मुख से जो है हम गाली देते हैं, तो इसमें ये बेमतलब है। In between, I also was using a lot of slangs. और बीच में जो है वो पासवान भी जो है वो बहुत ऐसे स्लैंग वर्ड यूज And करते whenever I थे। used to do this, when I get angry also, I will make that person frustrated. I will not get frustrated. I don't do that. Okay. और आमतौर पे पासवान ऐसा कभी नहीं करते थे, जब इन्हें बहुत गुस्सा आता है तो ये सामने वालों को जो है वो चिढ़ मचा देंगे पर खुद नहीं कभी चिढ़ते थे। And but suddenly I was using a lot of slangs. और अचानक से जो है ये बहुत अपशब्द या ऐसे स्लैंग वर्ड यूज So करते हैं। my wife told me, your children are there. What are you using? और मोनिका सिस्टर ने एक दिन इन्हें कहा कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम क्या शब्द कह रहे So हो? what I did, I did one lesson on myself. तो इन्होंने अपने खुद के जीवन पे एक सबक The दिया। moment I use any slang, I will give one tapli on my head. क्या कर दिया मैंने आवाज से? जिस घड़ी में कोई भी गलत शब्द अपने मुंह से निकालूंगा तो मैं खुद अपने आप को मारूंगा कि मैंने गलत किया। Not in front of everybody. मतलब when no one is there, not other when my children say पागल हो गए, he's gone crazy. और दूसरों के सामने नहीं, सबके सामने नहीं, जब ये अकेले हैं तभी। So one day what happened? I said 3-4 slangs, so lot of taplis I got on my head. It started paining me. तो एक दिन इन्होंने एक लाइन में जो है वो 3-4 जो है वो गलत शब्द कह दिए थे, तो इन्होंने 4-5 बार अपने आप को मारा Automatically I stopped giving slangs. और अब अपने आप जो है इन्होंने वो शब्द बोलना बंद कर दिया। If you're not dying to yourself, और अगर आप आपके प्राणों में नहीं मरते हो Satan is not afraid of you. तो शैतान आपसे नहीं डरता है। Trust me, you can apply the blood how much you want, but nothing will happen. और आप कितना भी लहू जो है वो लगा लो पर कुछ नहीं होगा। Now Luke chapter 9 verse 23. और लूका का 9वां अध्याय और 23 वचन, Luke chapter 9 verse 23. लूका का 9वां अध्याय 23 वचन कहता है, Yeah. उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। What is saying? If anybody loves me, he has to pick up the cross and follow me. और यहाँ पे लिखा है कि जो कोई मुझसे प्रेम करता है उसे अपना क्रूस उठाना और मेरे पीछे चलना है। What is the meaning of cross? और क्रूस का मतलब क्या है? You wear a gold chain and come, that cross? That is talking. No. What is speaking of the cross? Dying to yourself daily. और क्रूस उठाने का मतलब ये है कि हर दिन अपने आप में जो है वो मरना। And it's a very difficult thing to do. और ये बहुत ही मुश्किल चीज होती है करने Say के if you लिए। have anger issues, और अगर उदाहरण के लिए आप में जो है ये परेशानी कि आपको बहुत your जल्दी गुस्सा kids आता है, will instigate you to get angry. तो आपके बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे कि आपको गुस्सा आ जाए। Do not lose your cool. Be Captain Cool. तो गुस्सा मत हो, अपना ठंडा बना के रखो। Before church, कलीसिया आने से पहले earlier,
पहले, my children used to do some facade every Sunday. और पासवान के बच्चे जो है वो हर रविवार जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा करते थे And they used to irritate. और वो इन्हें इतना परेशान करते And थे। you know, I'm a man of zero tolerance. You can see it. I get pissed very fast. और पासवान एक ऐसे व्यक्ति है जिनमें बर्दाश्त की सीमा नहीं है। One day you should try it out with me. Okay, so they used to irritate. और वो इन्हें इतना परेशान करते I used to थे really feel like whipping them. और इन्हें ऐसा लगता था कि मैं इन्हें जो है वो मारूं। But I used to keep my cool. पर ये जो है वो चुप रहते थे। Why? I don't want to lose the anointing on Sunday. After the church, I'll bang them. और वो इसलिए ऐसा करते थे कि ये शांत रहते थे, ये कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि ये अपना वो अभिषेक उस रविवार के लिए नहीं खोना So चाहते थे। sometimes you need to die to yourselves. तो कई बार हमें अपने प्राणों में And it मरना will happen पड़ता on है। Sunday. और ये खास तौर से रविवार के दिन होगा All hell will break loose. और हर एक चीजें मुमकिन कोशिश होगी कि आप जो है वो गुस्से हो या Suddenly your stomach will start paining. अचानक से आपके पेट में दर्द होगा, Suddenly you'll feel sleepy. अचानक से आपको नींद आएगी, You will feel very lazy to come to church. आपको बहुत आलस आएगा कलीसिया आने के लिए, As if you're coming from London, not to here. और जैसे आप दूर विदेश से आ रहे हो यहाँ पे। And sometimes people say, I stay so far. और कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत दूर रहता हूँ। Even if you stay so close, still you'll come late. Because you're habituated to come late. और भले ही आप नजदीक भी अगर रहने लग जाओ तो भी आप देरी से आओगे, क्यों? क्योंकि आपकी वो आदत बनी हुई है देर से आने की, Because there is no respect. क्योंकि कोई आदर ही Not of the नहीं, pastor. पासवान का नहीं, If you would respect, you would come on time. क्योंकि कोई आदर ही नहीं है पासवान का नहीं, पर यीशु का अगर आप यीशु का आदर करते हो तो आप समय पे आओ। Now, dying to yourself daily. और अपने प्राणों में या अपने खुद में हर दिन मरना, Not one day you died and next day you rose from life. You started giving bad words. और ऐसा नहीं कि एक दिन जो है आपने अपनी शारीरिक इच्छाओं को मारा या अपने प्राणों में मरे और दूसरे दिन उठ के आप फिर वही चीजें कर रहे जो कर रहे। Satan is not interested in such believers. तो शैतान को ऐसे विश्वासियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, He takes you halka. वो आपको जो है वो हल्के में लेता He will be है laughing and he's like the blood. No commitment. और वो भी सोचेगा कि आप सिर्फ परमेश्वर का लहू लगाते हो पर आप उससे जुड़े हुए नहीं हो। He's only afraid of committed believers who die to themselves. और वो सिर्फ ऐसे विश्वासियों से डरता है जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है और जो हर दिन अपने प्राणों में मरते हैं। Now, 2 Corinthians chapter 10 verse 4. हम दूसरा कोरिन्थियों का 10वां अध्याय 4था वचन 2 देखेंगे। Corinthians chapter 10 verse 4. दूसरा कोरिन्थियों का 10वां अध्याय 4था वचन कहता है, Let's read this verse. और वचन कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गदों को डा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य It है। is talking our spiritual weapons are not normal weapons. और यहाँ पे वचन कहता है कि जो हमारे आत्मिक हथियार है वो सामान्य हथियार We नहीं। don't fight the devil with our words. हम शैतान से अपने वचन के द्वारा नहीं लड़ते, We cannot abuse him. हम उसे गाली नहीं दे You have सकते। spiritual weapons to fight the devil, and one of those weapons is the blood of Jesus. और हमारे पास आत्मिक हथियार है जिसके द्वारा हम शैतान से लड़ते हैं और एक हथियार यीशु मसीह का लहू है। Now, Exodus chapter 12 verse 21 to 23. हम निर्गमन का 12 अध्याय 21 से 23 वचन देखेंगे। Sakshi, who wrote the book of Exodus? No one. Sharandeep, who wrote the book of Exodus? किसने लिखा है बुक? पवित्र आत्मा मत बोलना, हूँ मुझे भी पता है। पवित्र आत्मा ने लिखा है। Okay, who wrote? ज्योति किसने लिखा है? अभी नेटफ्लिक्स पे नया सीरीज कौन सा आ रहा है? 2 Corinthians. Who wrote? Aisha? Moses wrote the first book, 4 books of the Bible. Yeah. और मूसा ने जो है वो निर्गमन की पुस्तक लिखी है और जैसे वचन कहता है, तब मूसा ने इजराइल के सब पुरानियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह के पर्व बलि करना। Yeah, please. तब मूसा ने इजराइल के 22, yeah. Go till 23. 21 to 23. 21 से 22 I read this। Okay. Yeah. और उसका लहू जो तसले में होगा उसमें जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंकों पर कुछ लगाना और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। Now you know the story. What happened? How the Lord delivered people of Israel from Egypt to Israel. और हम सबको ये कहानी पता है कि परमेश्वर ने जो है वो इजरायली लोगों को जो है वो मिस्र देश से कैसे बाहर निकाला। Moses told every family to cut a lamb. और मूसा ने हर एक परिवार को कहा कि तुम एक मेमना काटना, Take the blood, वो लहू लेना put in the basin. Listen to me carefully. Put in the basin. और उसे जो है वो बेसिन में डालना। Then take a hyssop
और फिर एक जूफा लेना take the hyssop and put it on the basin, take the blood and apply it on the walls. और उस लहू को जिसको उन्होंने तसले में रखा है एक जूफा लेके उसे डुबो के और उसे अपनी दीवारों पे लगाना। Now the blood of Jesus is at Calvary. और अब यीशु मसीह का लहू जो है उस कलवरी पे। How we will take the Calvary blood and put it on our lives? तो हम उस कलवरी से क्रूस के लहू कैसे लेके हमारे जीवन We पे don't have a लगाएंगे? hyssop now. हमारे पास कोई जूफा नहीं है Hyssop is nothing but faith. और वो जूफा और कुछ नहीं है पर हमारा विश्वास है। You pick up the blood through faith and you put it on yourself and on the wherever you want to put it. तो हम विश्वास के द्वारा जो है वो उस लहू को लेते हैं और हम उसे अपने ऊपर और अपने सामानों पे अपनी चीजों पे लगाते हैं। Now I'm going to share with you 7 benefits of the blood. और हम 7 ऐसे लाभ 7 फायदे देखेंगे लहू के। So the people in the household is to take the blood from the basin and put it on the doors through hyssop. We take the blood from Calvary through our faith and put it wherever we want. तो पुराने करार में लोग जो है उस तसले से लहू लेते थे और जूफा में डुबोकर अपने घरों पे लगाते थे और हम जो है आज की तारीख में विश्वास के द्वारा लहू लेते हैं और हमारे जीवन पे लगाते हैं। Before I go to the benefits, I want to read one portion of scripture. और हम जो फायदे हैं उसमें आगे बढ़ने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। 1 Peter chapter 1 verse 2. पहला पत्रस पहला अध्याय दूसरा वचन। 1 Peter chapter 1 verse 2. पहला पत्रस पहला अध्याय दूसरा वचन कहता है, Yeah, let's read this. और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा अज्ञान मनाने और यीशु मसीह के लहू के छिड़क के जाने के लिए चुने गए हैं। I want you to concentrate only on one line here. Only on one line. Forget that the other things. I'm saying one line. For obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. What is given? Obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. और जैसे इस वचन में लिखा है कि आज्ञा मानना और यीशु मसीह के लहू के छिड़क जाने के लिए। If you're not obeying the commandments of God, the blood of Jesus is useless if you apply. और अगर आप परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसे नहीं मानते हैं तो यीशु मसीह का लहू लगाना किसी मतलब का नहीं Only है। through obedience you get access and you can apply the blood of Jesus. और सिर्फ आज्ञा मानने की वजह से जो है हमें वो छूट मिलती है कि हम जो है वो लहू ले सकते हैं और अपने जीवन में लगा सकते So हैं। the first benefit of the blood of Jesus. तो जो पहला फायदा या जो पहला लाभ है यीशु मसीह के लहू का, Psalms 91 verse 1 and 2. और भजन संहिता का 91 अध्याय 1 और 2। Psalms 91 verse 1 and 2. Yeah. भजन संहिता का 91 अध्याय 1-2 कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। God will redeem you by the blood. He will make a fortress around you so that Satan cannot come near you. You are redeemed by the blood. और परमेश्वर जो है हमें उसके लहू के द्वारा जो है वो छुड़ाएगा, छुटकारा देगा और वो हमारे चारों तरफ एक तरीके का बाड़ा बांधेगा ताकि शैतान जो है वो हमारे ऊपर हमला ना कर सके। Remember, Satan has access to everybody. और याद रखिए कि शैतान जो है वो हर किसी के ऊपर जो है वो हर किसी के पास जा सकता है। Everybody can be demon possessed. They cannot literally manifest, but the demon is inside. और हर किसी के अंदर जो है वो शैतान हो सकता है, शायद वो उसे प्रकट नहीं करे पर हर किसी के अंदर जो है शैतान हो सकता है। Some people manifest, some people don't. कुछ लोग जो है वो दिखाते हैं, प्रकट करते हैं, कुछ लोग नहीं। So especially when people are praying, some people manifest, or some people are no, they are hidden demons inside. और कुछ लोगों के अंदर जब शैतान होता है और उनके ऊपर प्रार्थना की जाती है जब वो प्रकट होते हैं, पर कुछ लोगों के अंदर शैतान है पर उन्हें पता ही नहीं। Let me give you some rare demons name. और हम आपको कुछ ऐसे शैतानों के नाम Let बताएंगे। me frighten you. Demon of gluttony, always eating. और एक ऐसा शैतान होता है जो भूखड़ शैतान बोल सकते हैं, जो खटर खाता है। Demon of lazy. एक होता है आलसी का शैतान, आलस का शैतान। Demon of sex. एक होता है यौन शोषण का। Any person, doing it again and again, anything, it's wrong. और कोई भी व्यक्ति अगर ये चीजें जो है वो बार बार करता है तो ये गलत है। So these are the demons which you have not heard of. Sometimes you think gluttony is something, they are feeling hungry. It's a spirit. और ऐसे कोई शैतान, ये जो नाम होंगे कभी हमने नहीं सुना। अगर हम किसी को देखते हैं कि जो बहुत खाता है, अब हमेशा खाता रहता है, तो हम सोचते हैं उसे भूख लगी होगी, पर नहीं, ये भी एक दुष्ट आत्मा है। So now this God has given us redemption power through the blood. तो परमेश्वर ने हमें जो है वो छुड़ाने का सामर्थ्य दिया है लहू के द्वारा। Second benefit. दूसरा लाभ 1 John chapter 1 verse 7. और पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन। 1 John chapter 1 verse 7. Yeah. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन कहता है,
पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से भागीदार रखते हैं और उसे पुत्र यीशु मसीह को लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। Cleansing. The blood of Jesus cleanses us. और दूसरा लाभ यह है कि यीशु मसीह का लहू जो है हमें शुद्ध करता Now है। I want to explain to you the meaning of cleansing. और शुद्ध करने का मतलब क्या है? Say for example, I sin. और उदाहरण के लिए जैसे मैं पाप करती हूँ And I repent of my sin by asking forgiveness by the blood of Jesus. और मैं अपने उस पाप का पश्चाताप करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ यीशु मसीह के लहू के द्वारा। When I go to heaven, जब मैं स्वर्ग जाती हूँ God will not remember that sin. तो परमेश्वर उस पाप को नहीं याद रखेगा। Why? Because it's wiped out, it's cleansed by the blood of Jesus. और वो क्यों याद नहीं रखेगा? क्योंकि उसे जो है वो साफ कर दिया गया है, धो दिया गया है, शुद्ध कर दिया गया है यीशु मसीह के लहू In the के द्वारा। olden days, the blood of animals is to cover the sin, but the blood of Jesus wipes the sin. और पुराने करार में जो है वो जानवरों के लहू के द्वारा जो है वो पापों को ढांपा जाता था, पर अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस पाप को जो है पूरा मिटा दिया जाता है। Why there is so much power in the blood of Jesus? और यीशु मसीह के लहू में इतना सामर्थ क्यों है? Why? क्यों? Anybody can answer the question? Why there is power in the blood of Jesus? Anybody can tell me? Yeah, Neeru? Yeah, because that is why he came on the earth. Yeah, but why? There's life in the blood. Yeah, It's one pure. more. The main It's thing. pure. Yeah, it's pure. He did not sin. If he would have sinned, God. और यीशु मसीह के लहू में इतना सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि एक तो उसके अंदर जीवन है और दूसरा वो शुद्ध लहू है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। No animal can cover your sins. तो कोई भी जानवर जो है वो हमारे पाप नहीं ढांप Because do you सकता। know what infection they got inside? You don't know. क्या आपको पता है कि क्या बीमारी है उस जानवर के अंदर? But Jesus was sinless. पर यीशु मसीह जो है वो बिना किसी Let me tell you पाप के something. The full history is divided into AD and BC. Who has made history? Believers, unbelievers. और पूरा इतिहास जो है वो दो हिस्सों में भागा गया है, एक है एडी, दूसरा है बीसी। और विश्वासियों ने इतिहास नहीं रचा है, लिखा है। Some historians have made it who don't believe God. They may be atheists also. और कोई जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं उन्होंने शायद लिखा होगा जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, जो नास्तिक हो। So let me tell you something. What is BC? Before Christ. और बीसी का मतलब क्या होता है कि मसीह के पहले। And we learn in history. The full history is divided into these timelines: AD and BC. और पूरा इतिहास जो है वो ये दो हिस्सों में भागा गया है, एक है एडी और दूसरा है बीसी। What is AD? It is not after that. It is Anno Domini. और At the एडी year of the Lord. Yeah. From the time he's born. और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। Means they also believe, those historians, that Jesus is not dead. तो जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं वो भी ये मानते हैं, वो भी ये जानते हैं कि यीशु मसीह मरे नहीं हैं। Search this. AD people they after death. अरे मरा ही नहीं. He rose from the grave. Those people who are writing on, they are not believing, but they are writing. Wow. और एडी का मतलब जो है वो आफ्टर डेथ नहीं होता है, मृत्यु के बाद में होता है, क्योंकि वो कभी मरा ही नहीं, वो जो है वो तीसरे दिन फिर से जीवित हुआ था। जो लोगों को जो विश्वासी नहीं है, मानते नहीं है, वो भी लोग ये लिख रहे हैं। And it is Jesus only who died on the cross. No one else came and died. He only died. और सिर्फ यीशु मसीह ही एकलौते ऐसे थे जो क्रूस पे मारे गए और कोई आके नहीं मरा था। Even the tomb in Israel is still empty because he's not there. और इजराइल में जो कब्र है वो आज भी खाली है क्योंकि वो उसमें नहीं है। So Jesus' blood cleanses us of our sins. तो यीशु मसीह का लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध करता I है। want you to make it a practice every day. और हम चाहेंगे कि इस बात को जो है आप हर दिन अपने जीवन में When you करें। get up, ask for forgiveness of your sins. तो जब आप सुबह उठते हो तो अपनी पापों की क्षमा मांगो, Because you don't know how you have sinned. If you think bad also about someone, it's a sin. क्योंकि आप नहीं जानते हो कि आपने कैसे पाप किया हो। अगर आप किसी के बारे में गलत भी सोचते हो तो वो पाप है। In the night before going to sleep, repent of your sins. And just to pray, Lord Jesus, please forgive me of my sins and wash me clean with your precious blood. और रात को सोने से पहले जो है हर बार अपनी गलती की, अपने पाप की जो है वो क्षमा मांगो, पश्चाताप करो। सिर्फ इतना कहना है कि परमेश्वर मैं अपनी गलती की क्षमा मांगता हूँ और तू अपने पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। There was a boy who was taught this every day by his parents. और एक लड़का था जिसे अपने माता पिता के द्वारा ये सिखाया गया था। He was 7 years old. वो 7 साल का था। Every day in the morning, he used to pray this prayer. और हर दिन सुबह वो ये प्रार्थना करता था। Before going to bed, he used to pray this prayer. और सोने से पहले वो ये प्रार्थना करता था। One day, when he was 10 years old, और एक दिन जब वो 10 साल का हो he गया, prayed this prayer उसने ये प्रार्थना की of the repentance. Please forgive me, Lord. पश्चाताप की कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर। He never got up after that. He died. उसके बाद वो कभी भी नहीं उठा, वो मर गया। Where he went? Obviously to hell.
और वो कहाँ गया? स्वर्ग गया। I'm telling you, get into the habit of good things. Some of us get up and we start abusing people instead of rectifying our lives. तो हमारे अंदर जो है वो अच्छी आदतें डालो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर सुबह उठते हैं और बिना अपने आप को जानने पहचाने जो है वो लोगों को गालियां देने लग जाते हैं। So keep it a practice. First, when you get up, ask for repentance, and before going to bed, ask for repentance. It'll just take you 1 minute. तो ये एक आदत अपने आप में जो है वो डाल दो कि सोने से पहले जो है वो आप एक पश्चाताप की प्रार्थना करोगे और सुबह उठने से पहले भी जो है आप क्षमा की प्रार्थना करोगे। Romans chapter 5 verse 8 to 9. Romans chapter 5 verse 8 to 9. The third benefit. Romans chapter 5 verse 8 to 9. और हम तीसरा लाभ देखेंगे रोमियो का 5वां अध्याय 8 से 9 वचन। Yeah. वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। Verse 9. सो जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचे। Now we have been justified. The third reason is we have got justification by the blood of Jesus. तो हमें जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो है वो धर्मी ठहराया गया। What is justification? और धर्मी होना क्या होता है? Just as if you have not sinned. और धर्मी होना ये होता है कि ऐसा रहना कि जैसे तुमने कभी पाप My नहीं किया। slate is clear. My past is clear if I have repented from Jesus. और अगर मैंने यीशु मसीह के आगे पश्चाताप किया है तो जो मेरा भूतकाल है वो बिल्कुल साफ हो You गया। might be a murderer, you might be a rapist, you can be anything. If you repent, God will forgive you. और आप शायद खूनी हो सकते हो, आप बलात्कारी हो सकते हो, पर अगर एक बार आपने पश्चाताप किया है तो आप क्षमा किए गए। I've seen so many men of God. They were like gunda types, but God used them mightily for the kingdom. और जैसे पास्टर ने कहा कि उन्होंने इतने परमेश्वर के जन को देखा है जो जिनका जीवन पहले ऐसा था कि बहुत ही खराब था, वो लिटरली गुंडे जैसे थे, पर आज उन्होंने पश्चाताप किया और उनका जीवन बदला। You know, Paul used to persecute the Christians, used to hit people. He was there. He was advocating the killing of Stephen. और हम सब पौलुस के बारे में जानते हैं कि पौलुस जो है वो विश्वासियों के ऊपर सताव लेकर आता था, वो विश्वासियों को मारता था, और जब स्टीफन को भी मारा जा रहा था तो वो वहाँ पे खड़ा था। But he repented and he wrote 2/3 of the New Testament. पर उसने पश्चाताप किया और उसने 2/3 जो है वो नया करार लिखा है। So repent. तो पश्चाताप करो। Do not think I'll repent tomorrow. You might not get tomorrow. और ऐसे मत सोचो कि मैं कल जो है वो पश्चाताप करूंगा, शायद आपको वो कल ना मिले। So 3 things I shared with you. तो हमने 3 चीजें सीखी। First, redemption. पहला है छुटकारा, Second, cleansing. दूसरा है शुद्ध करना, Third, justification. और तीसरा है धर्मी ठहरना। Now, before we close, I want to show you something. John chapter 10, verse 10. We know this verse, और हम समाप्त करने से पहले देखेंगे यूहन्ना का 10वां अध्याय 10वां but we'll वचन। see it something. John chapter 10, verse 10. और यूहन्ना का 10वां अध्याय 10वां वचन कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि जीवन पाए और बहुतायता से जीवन पाए। Now, the Bible says the thief does not come except to steal, kill. Who's the thief? Satan. और यहाँ पे पवित्र शास्त्र कहता है कि चोर केवल सिर्फ चोरी करने के लिए नहीं आता है, और चोर कौन है? शैतान। And Jesus says, I have come. That is Jesus. और यहाँ पे यीशु कहते हैं कि मैं आया हूँ। Now, what does the thief come to steal? तो शैतान क्या चुराने आता है? He comes to steal your soul. वो हमारे प्राण चुराने आता है। What does he come to kill? वो क्या मारने आता है? He comes to kill your dreams. वो हमारे स्वप्नों को मारने आता So है। that he'll give you sickness, he'll put you in a different trap, and he'll mess up your life. और वो हमारे स्वप्नों को मारने आता है ताकि वो हमारे अंदर बीमारी डालेगा, हमें किसी और जाल में फंसाएगा ताकि हम हमारे जीवन को खराब कर दें। And the last is destroy. What does he destroy? और तीसरा है नाश करने के लिए। तो वो क्या नाश करने आता He है? destroys your destiny by taking your soul to hell. और वो हमारा जो लक्ष्य है उसे नष्ट करने के लिए आता है, हमारे प्राणों को नर्क लेके जाता है। I'm telling you, there is no one who can take you to heaven but only the blood of Jesus. और हमें और कोई स्वर्ग नहीं लेके जा सकता है सिवाय यीशु मसीह के Let's stand in God's presence. आइए परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो Let's close our eyes. और हमारी आंखें बंद करेंगे And let's think what we learned today about the blood of Jesus. और हम सोचेंगे कि आज हमने यीशु मसीह के लहू के बारे में क्या सीखा। Let's close our eyes. What does the blood of Jesus, what the blood at Calvary means to me? और हमारी आंखें बंद करेंगे और सोचेंगे कि उस कलवरी पे वो लहू मेरे लिए क्या It है। has redemptive power, उसमें छुटकारे का it सामर्थ्य has है, cleansing power, उसमें शुद्ध करने का and it सामर्थ्य has है, justified your sins. उसमें हमें धर्मी ठहराने का सामर्थ्य है। If you have not repented of your sins, और अगर आपने अपने पापों का पश्चाताप I नहीं want to किया है, make a prayer today and you can say that prayer after me. और पासवान एक प्रार्थना करेंगे और हम उसके पीछे दोहरा There is सकते no हैं। force. We don't force anybody. If you would like to say that prayer with me, I will say it
and you will repeat after me. I'll say it in Hindi. और आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, हम किसी पे जबरदस्ती नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने पाप किया और पश्चाताप नहीं किया है तो पासवान वो प्रार्थना करेंगे हिंदी में, हम उनके पीछे दोहरा सकते And हैं। those who already are believers, they will also say it because we require to repent every time. और जो पहले से ही विश्वासी है वो भी ये प्रार्थना वापस से दोहराएंगे क्योंकि हमें हर दिन पश्चाताप करना है। You'll repeat after me. सब लोग बोलेंगे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि 2000 साल पहले कि 2000 साल पहले आप क्रूस पे आए थे, आप क्रूस पे आए थे, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूँ, मेरे हर पाप को आपके पवित्र लहू से शुद्ध कर देना। आज से मैं आपका बेटा और आप मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से। Amen. I want to pray for those people who have said this prayer for the first time. और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे जिन्होंने ये प्रार्थना पहली बार कही I है। don't want you to raise your hands, and I just want to pray. और हम नहीं चाहेंगे कि आप आपके हाथ उठाएं, हम सिर्फ प्रार्थना करना चाहेंगे। Father, we thank you for this time. पिता, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते Thank हैं। you, Lord, that there were people who committed their lives to you. धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना जीवन आपको सौंपा। You said in your word that trust and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. और आपने कहा कि धन्य है वो व्यक्ति जो उस पे भरोसा करता है। I pray that, Lord, you said in your word, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. और धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने आपके वचन में कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी जो है वो टल जाएगी पर मेरा वचन कभी नहीं I टलेगा। pray that, Lord, if they have any dreams, if they have any problem in their life, I'm sure you're going to help them. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अगर उनके जीवन में कोई भी स्वप्न है, कोई भी ऐसा दर्शन है या कोई भी समस्याएं हैं तो आप उनकी मदद करें। Let them know you in a better way. वो आपको और बेहतरीन तरीके से जान Because सकें। you are more sweeter than honey. क्योंकि आप शहद से भी बहुत मीठे In हैं। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen.